ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ فیصل آباد میں نئی نویلی دلہن کے ٹک ٹاک بناتے گولی چلنے سے ہلاکت کا کیس۔ ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی چلنے سے ہلاکت کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ تھانہ صدر جڑاوالا میں پولیس کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوبہتہ دلہن 10 سالہ بھانجے کے فائر کرنے سے قتل ہوئی۔ لڑکی کی 2 روز قبل عظمت نامی رشتہ دار سے شادی ہوئی تھی۔ 10 سالہ بھانجے کی مبینہ فائرنگ سے دلہن کی موت ہوئی۔ مقتولہ کے والد نے حقیقت کو چھپا کر 10 سالہ ملزم بچے کو بچانے کی کوشش کی۔ پولیس نے 10 سالہ ملزم کو حراست میں لے کر مقدمے میں نامزد کر دیا۔ گجرات کے نواحی علاقہ ڈنگا میں گھریلو جھگڑے پر وکیل کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ 2 ہفتے قبل بڑے بھائی نے مقتول شعیب احمد ایڈوکیٹ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ فائرنگ سے زخمی وکیل ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ رحیم یار خان میں تھانہ سی ڈویژن کی حدود ٹبیلاڑہ میں وکیل کے ڈیرے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایڈوکیٹ کا بھائی قتل ہو گیا۔ ٹبیلاڑہ میں وکیل کے ڈیرے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایڈوکیٹ کا بھائی جاں بحق۔ فائرنگ کے بعد ملزمان جے وقوع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ جنڈ تھانہ بسال کی حدود 2 میل گاؤں میں زمینی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زمینی تنازع پر لڑائی ہوئی۔ تنازع پر قریبی رشتہ داروں کے درمیان لڑائی کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمی کو THQ ہسپتال جنڈ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری ہے۔ لوڈن کے نواحی علاقے 58 WB کی رہائشی خاتون کے ملکیتی رقبے کو ہتھیانے کے لیے بھائی اور اس کے بیٹے جان کے دشمن بن گئے۔ متاثرہ خاتون نے IG پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق میری ملکیت اراضی 6 کنال ہتھیانے کے لیے میرا بھائی اور اس کے بیٹے میرے بیٹوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ گزشتہ روز اپنے رقبہ پر بیٹوں کے ہمراہ موجود تھی کہ بھائی اور اس کے بیٹوں نے کلہاڑی اور ڈنڈے سوٹوں سے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر تشدد کیا اور میرے بیٹوں کو مار مار کے شدید زخمی کر دیا۔ ایک بیٹے کا بازو توڑ دیا اور دوسرے بیٹے کا سر پھاڑ دیا، جن کے میڈیکل حسب ضابطہ ہو چکے ہیں۔ اگر موقع پر پولیس نہ آتی تو بھائی نے میرے بیٹوں کو جان سے مار دینا تھا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کر دی۔ والدہ دے حصے دے وچ 6 کنال رقبہ ہے عدالت دے طرفوں۔ ملک پلوان ولد حاجی باول نجائز قبضہ کرن دی کوشش کر رہا ہے۔ آئے روز اپنے بیٹیاں نو لے کے تے ڈکیٹاں نو لے کے سانو مارن دی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کل بروز اتوار والے دن آئے اسی اپنی زمین چ گئے، سانو انہوں نے ماریا ہے، میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، سر کھلے ہویا ہے۔ دوسرا بھائی میرا اتنا مضروب ہے وہ گھر ہے، ساڈے کول خرچہ کوئی نہیں ہے ہسپتال دی دوائیاں لین دا۔ شیخوپورہ میں تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ کوٹ عبد المالک کے قریب 2 روز قبل مبینہ مقابلے میں ہلاک ڈاکو کے ورثاء نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے لاہور شیخوپورہ روڈ بند کر دی۔ احتجاج سے دونوں اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ DSP فیروز والا کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ 2 روز قبل شہریوں اور ڈاکوؤں کے درمیان ہونے والے مقابلے میں 3 مسلح ڈاکو ہلاک ہو گئے تھے۔ حبیب آباد شہر کے نواحی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات، پولیس یونیفارم میں ملبوس چور سونا اور نقدی لوٹ کر فرار۔ حبیب آباد شہر کے نواحی گاؤں میں چور شہری کے گھر سے 7 تولہ سونا، 5 لاکھ نقدی اور 1 عدد موبائل لے اڑے۔ متاثرہ فیملی کے مطابق چوروں نے پولیس یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ پسٹل اور رائفل سے لیس چوروں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ اہل خانہ نے 1515 پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کے شواہد اکٹھے کیے اور تفتیش شروع کر دی۔ کبیروالا کے تھانہ نواز شہر کی حدود مونگا نوالا میں نامعلوم کار سوار نے نوجوان کی لاش پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نوجوان کی شناخت شکیل ولد ظفر سکنا کے نام سے ہوئی ہے، جسے قتل کر کے لاش پھینک دی گئی۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لیا میں انسداد اسموگ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر محکمہ ماحولیات اور انتظامی افسران نے تحصیل کروڑ میں 5 بھٹے مسمار کر دیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات کے مطابق تحصیل کروڑ لالیسن میں خصوصی آپریشن کیا گیا اور زگ زیگ ٹیکنالوجی پر عمل درآمد نہ کرنے والے بھٹے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ دوران معائنہ 5 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر عمل پیرا نہ تھے، جن کو ہیوی مشینری سے مسمار کر دیا۔ مالکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر عمل کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
गढ़ा मोड़ में दो रिक्शों के दरमियान तसादुम में एक शख्स जाम भाग और एक शदीद जख्मी हो गया। शहरी सामान छोड़कर वापस आ रहा था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए सामने से आने वाले रिक्शे से टकरा गया और शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदादी और हस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हो गया। दूसरे जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। फैसलाबाद में महंगाई में इजाफा, शहरियों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई के बायस लंडे के कपड़ों की कीमत में इजाफा हो गया है। फैसलाबाद में सर्दियों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़े मफलर्स और गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ताहम इस साल टैक्सों और बेजा कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और बेजा टैक्सेस की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले इस्तेमाल शुदा कपड़े महंगे हो गए हैं। महंगाई की मौजूदा लहर से दो वक्त की रोटी कमाना और मुख्तलिफ और सफेद पेश तबका काफी मुतासर नजर आ रहा है। बहुत महंगाई है, इधर लोग सौदा नहीं खरीद सकते, माल बहुत लाया और गाहक नहीं है। टैक्सेस की वजह से और महंगाई की वजह से गाहक बिल्कुल नहीं है। 500 वाली चीज का 100 रुपया लगा रहा है, इसलिए गाहक वापस ही जा रहे हैं, ज्यादातर लेने वाले कम है। जंग में सीवरेज का निजाम दरहम भरहम, सीवरेज का पानी क्रिकेट ग्राउंड में जमा हो गया। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं रफीक खान। जंग में इंतजामिया और महकमा बल्दिया की अदम दिलचस्पी के बायस जगह जगह सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे हैं। बल्दिया अमला की अदम दिलचस्पी के बायस जंग के पोश और गुंजान आबाद इलाके सैटेलाइट टाउन के ए ब्लॉक में कायम क्रिकेट ग्राउंड में अरसा दराज से सीवरेज का पानी मौजूद है, जो अब बाकायदा जोड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बच्चे ग्राउंड मुयसर ना होने से मायूस नजर आते हैं। हमने यहाँ पे पिंच बनवाई थी और मिट्टी भी फंकवाई थी, प्यासे लगे थे और फिर यहाँ पे गंदा पानी आ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है और पीने का पानी भी मुतासर हो रहा है। पानी खड़ा हुआ है, बदबू स्मेल इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हर रोज बच्चों को नई से नई बीमारियाँ लग रही हैं। मुतलका अफसरान की जानिब से यकीन दिलाने के बावजूद ग्राउंड से सीवरेज के पानी की निकासी का इंतजाम ना हो सका। शहरियों ने बल्दिया हुकाम से ग्राउंड से पानी की निकासी का मुतालबा किया है। रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। पूरे वाला शहर और इसकी नवाही आबादियों में बर वक्त हिफाजती इकदाम न होने और अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से डेंगू के मर्ज में गैर मामूली इजाफा हो गया। सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का रश बढ़ गया। महकमा सेहत और बल्दिया की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मजीद देखेंगे अब्दुल लतीफ की रिपोर्ट। बुरेवाला शहर और इसकी आबादियों में गुज़श्ता 2 हफ्तों से डेंगू मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। दर्जनों मरीज सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत और बल्दिया की जानब से बर वक्त इक़दाम ना उठाए जाने की वजह से डेंगू और मलेरिया का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। साढ़े परसों तो लैके अज तक 3 मरीज सारे इतने THP हॉस्पिटल दे विच आ चुके हैं, जबकि एक नूं इन्हां ने मुल्तान रैफर कर दिता है, एक नूं 15 मिनट पहले साहिवाल रैफर कर दिता है, एक साडा मरीज इत्थे पिया। कोई इत्थे जिहड़ा ना किसी किस्म का कोई चैकिंग वगैरह डॉक्टर वगैरह हर बंदा अपनी मसरूफियात विच मसरूफ है जी। जिला इंतजामिया अगे साडी रिक्वेस्ट है कि इस THP हॉस्पिटल ते थोड़ा जिहा गौर किया जाए। हाड़ी डॉक्टर फाजिल का कहना है कि जिन इलाकों से डेंगू का लावा बरामद हो रहा है वहाँ बल्दिया की मदद से न सिर्फ स्प्रे का अमल शुरू कर दिया गया है बल्कि आवाम को एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। इंशाल्लाह जल्द इस पर काबू पा लेंगे। डेंगू का मर्ज तेजी से फैलता शहरियों के लिए बायस तशवीश बन चुका है। इस सूरत हाल में इंतजामिया को चाहिए कि इसके तदारक के लिए फौरी ठोस और अमली इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुल लतीफ गजनवी, नुमाइंदा ABN न्यूज़, बुरेवाला। लोधरा शहर के रोड्स की हालत खराब हो चुकी है। गला मंडी रोड और चिल्ड्रन पार्क रोड टूट फूट का शिकार है। हर वक्त मिट्टी उड़ रही है। शहरियों का कहना था कि माजी में काफी हादसात हो चुके हैं। अवामी नुमाइंदे इस पर तवज्जो दें। डिप्टी कमिश्नर भी अपना किरदार अदा करें। शहर के अक्सर रोड टूट फूट का शिकार है। जैसे चिल्ड्रन पार्क का मेन पार्क का रोड है, शहर का मेन रोड है और ये सबसे ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। इसी तरह गला मंडी के तमाम रोड टूट फूट के शिकार है। जो मंडी कपास के लिए जाना पड़ता है, गड्डियाँ पंचर होती हैं, मोटरसाइकिल हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है। काफ़ी हादसा पहले हो चुके हैं और मज़ीद हो भी रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनवाया जाए ताकि मज़ीद जो हादसा हैं उनसे बचा जाए और जानी नुकसान से भी बचा जाए। राजनपुर के नवाही इलाके कोटला नसीर का खजीवाला रोड 15 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हाई स्कूल आने जाने वाले तुलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है।
BHU हस्पताल कोटला नसीर में मरीजों को भी लाने में मुश्किलात पेश आती हैं। इलाके के मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारियां दरपेश हैं और रेस्क्यू को भी मरीज उठाने में परेशानी होती है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि रोड की जल्द मुरम्मत की जाए। अहमदपुर चरकिया में चाचा बस्ती चौक से चौक मुनीर शहीद तक सड़क की तामीर ताखीर का शिकार है। ठेकेदार पत्थर डालकर गायब हो गया। सड़क से उड़ती धूल से लोग सांस की बीमारी का शिकार होने लगे हैं। आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। देखिए जी, ये हमारे अहमदपुर शर्किया की ये रोड है और मेन रोड है, कचहरी रोड है, और यहाँ पे बेशुमार बैंक हैं और दफातर हैं, महकमा वापडा का भी और 1122 का दफ्तर भी है। रोड की हालत आपके सामने है, देखिए कितनी मट्टी उड़ रही है और ये सांस की बीमारी का भी इसमें पैदा हो सकती है। मेन कचहरी रोड है, यहाँ पर जो बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ से अक्सर जो दुकानदार हैं उनको ये परेशानी है, ये धूल है, यहाँ पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कितने बैंक हैं और 11 22 जो है उसकी गुजरगाह भी यही से है। ये रोड मेन रोड है, शहर का मरकजी रोड है, कचहरी रोड है। इस रोड पर बैंक 1122 का ऑफिस और दीगर ऑफिस भी यहाँ मौजूद हैं। मैं मुतालबा करूँगा मकामी और ज़िले इंतजामिया से कि फौरी इस मामले का नोटिस लें। समरियाल में महंगाई में इजाफा हो गया। जान बचाने समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहर भर में जान बचाने शुगर, ब्लड प्रेशर, नज़ला जुकाम, बुखार, दिल की बीमारियों समेत अहम अमराज के अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफे से अवाम उन्नास परेशान हैं। अजी सरकारी हस्पताल जाके साड़ी सुनता कोई नहीं उसे, वो दवाइयाँ बाहर दियां लिखते हैं, बाहरों दवाई इन्नी महंगी है कि साड़ी असी खरीद नहीं सकते। लिहाजा असी नवाज शरीफ अगे, शहबाज शरीफ अगे अपील करने हैं कि जो दवाई दी कंपनियां ने इन्होंने अगे अपील करने कि दवाई का रेट बहुत कम हो। दवाइयां खरीदियां जांदियां पईयां, दवाइयां भी इन्नियां महंगियां हो गई कि गरीब आदमी करे की। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1000-1200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। हुकूमत अगे आरज़ू है कि साडा कुछ करो। गुजर खान शहर में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। बहरानी कैफियत है। शहरियों को 24 घंटों में वक्फे से 5 घंटे गैस मुयसर है। तलबा और जॉब करने वालों को शदीद कोफ्त का सामना, जबकि घरों में भी खाना पकाना मुहाल हो चुका। गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है जी। सुबह बच्चे भी बहुत मुतासर होते हैं स्कूल जाते हुए, गैस ही नहीं होती, बिल डबल भेज देते हैं हमें, और बड़े बंदे भी बीमार हैं, गैस होती ही नहीं है बिल्कुल। शहर के अंदर गैस की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब बिल आते हैं तो वो इतने ज़्यादा बिल्स होते हैं कि वो आउट ऑफ रेंज होते हैं और वो जो है पे नहीं कर सकते लोग। तो मेरी ये गुजारिश है इंस्टीट्यूशन से, अरबाब इख्तियार से, कि काइंडली इस कमी को पूरा किया जाए, इस लकूने को फुलफिल किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, दुनियापुर में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना नाहरी ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। शहर के अक्सर सड़कों पर गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। फैजान मदीना रोड पर ट्रैफिक का बहुत रश होता है। देही इलाकों के लोग इसी सड़क से शहर आते हैं। स्मोक और धुंध की वजह से राहगीरों को कुछ नजर नहीं आता। अक्सर मोटरसाइकिल सवार और राहगीर अंधेरे के बायस इन गटरों में गिर जाते हैं और हाथ पांव भी तोड़वा बैठते हैं। इलाका और राहगीर कहते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। राहगीरों और अहले इलाका ने कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर गटरों के नए ढक्कन लगाएं ताकि आवाम की जिंदगियां महफूज हो सकें। जतोई में बढ़ती लोड शेडिंग ने कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर दी। शहरियों ने मैपको सब डिवीजन से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जतोई और बिदरवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। दर्जी हो या दुकानदार, कारोबार तबाह हो चुका। शहरियों का कहना था कि एक तरफ महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी, दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिए। आज तीसरा दिन है लोड शेडिंग की हो रही है। सुबह 9 बजे जाती है लाइट और शाम को कभी 4 बजे आती है, कभी 5 बजे आती है। तो कारोबार तबाह होकर रह चुके हैं। महंगाई का बोलबाला है और बिजली की वजह से कारोबार, हमारा काम टोटल बिजली से है। 3 दिन हो गया लाइट से परेशान है। हालात आपके सामने है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। जतोई शहर का आप हाल देख रहे हैं, क्या हाल है। तीसरा दिन है, लाइट नहीं है। हुकूमत से अपील है इसी बात का नोटिस लिया जाए। कस्टमर नहीं, अखराजात बहुत हैं आपके सामने है।
बलकसर में वापडा के लाइनमैन ने मुबैना तौर पर 15,000 रुपए लेकर घरेलू मीटर तो नस्ब कर दिया, लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद ना तो बिजली का बिल मौसूल हुआ और ना ही मीटर फाल किया गया। शहरी के मुताबिक बलकसर मोहल्ला गरबी के लाइनमैन ने 15,000 रुपए लेकर घरेलू मीटर तो नस्ब कर दिया, मगर 8 माह गुजरने के बावजूद ना तो घर का बिल मौसूल हुआ और ना ही मीटर डिस्कनेक्ट किया गया। मुतासरा शहरी ने कहा इसको चकवाल और SD भगवाल को मुतादिद बार तहरीरी दरख्वास्तें भी दे चुके हैं। खानबेला की अहम सड़कों पर तजावुजात की भरमार है और तजावुजात माफिया ने हुकूमत पंजाब के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। शहर की मसरूफ तरीन सड़कों पर तजावुजात माफिया काबिज हैं, जो कानून से बालातर नजर आता है। इंतजामिया तजावुजात के खात्मा करने में नाकाम रही है। मेन बाजार और दीगर सड़कों पर कई अरसे से तजावुजात कायम हैं और मुतादिद ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयां तक महदूद हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत ने तजावुजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। शकरगढ़ के दर्जनों सैनिटरी वर्कर्स ने रवा माह की तनख्वाह न मिलने के खिलाफ सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कचहरी चौक में एहतजाज किया है। 6 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਟੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਘਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सोशल वेलफेयर ऑफिस कुंदिया की पिपला मुंतकली, इलाके के माजूर अफराद और शहरी सोशल वेलफेयर ऑफिस की मुंतकली पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक इलाके के माजूर अफराद की माली मुआवनत के लिए ये इदारा 1972 में कायम किया गया था। सोशल वेलफेयर ऑफिस को कुंदिया से पिपला मुंतकली की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के अलावा तमाम स्टाफ को यहां से तब्दील कर दिया गया। दफ्तर का बिजली का मीटर भी बिल की अदम अदायगी की वजह से काट लिया गया। सोशल वेलफेयर ऑफिस अमले की तब्दीली की वजह से अक्सर बंद भी रहता है। कोट मुबारक में नून लीग के रहनुमाओं बहादुरगढ़ खोसा की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम जारी। नौ मुंतखब लीगी रहनुमा अब्दुल कादिर खान खोसा, सरदार सलाहुद्दीन खान खोसा और उसामा फयाज लगारी की जेर निगरानी तरक्याती कामों की शुरुआत कर दी गई है। इन मंसूबों में रोडों की पुख्ता मुरम्मत और तामीर नो, शहरों में सफाई सुथराई के निज़ाम पर तवज्जो, BHU लेवल पर अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत शामिल है। इसके अलावा अंदरूनी शहर हैवी मशीनरी लगाकर सफाई का काम मुकम्मल किया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में अस्पताल मुंतकली के दौरान हमला खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। रेस्क्यू को मौजा भिंडी कोराई से खातून की तबीयत खराब होने की इत्तला मिली थी। रेस्क्यू के मुताबिक अस्पताल मुंतकली से कबल ही खातून की तबीयत बिगड़ गई। इस मौके पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने खातून के अहले खाना की इजाजत से एम्बुलेंस में ही डिलीवरी कराई। मां और बच्चे को बखैरियत THQ अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया गया। न्यू मरी में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फरहमी के लिए थाना पटियाटा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। DPO साहब के हुक्म के मुताबिक आज हमने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में हमने लोगों के मसाइल सुने, दीगर जो भी मसाइल थे लोगों के, उनके लिए हमने सख्त अहकामात भी जारी किए कि उन पर बर वक्त कार्रवाई की जाए और आगे उसको यकसू किया जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अमन कमेटी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने फ़ीडबैक भी लिया। खुली कचहरी का इनेकाद अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है ये हम इंशाअल्लाह हर महीने करेंगे और इसको हम एक रूटीन में बनाएंगे, उसको स्केड्यूल करेंगे ताकि लोगों के जितने मसाइल हैं वो बर वक्त हल हो सकें। रहीम यार खान रजाकारों का आलमी दिन पुरजोश अंदाज में मनाया गया। इस हवाले से सिटी पुल से दुआ चौक तक आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें रेस्क्यू के एहलकारों, रजाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक में इंसानियत से सरशार रेस्क्यू रजाकारों की खिदमत को सराहा। मजीद देखेंगे उज़ैरुल हक चौधरी की रिपोर्ट। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, रेस्क्यू रजाकार हमा वक्त अदारों के साथ आफात से निपटने के लिए तैयार होते हैं। 5 दिसंबर मुल्क भर में रजाकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से रहीम यार खान सिटी पुल से दुआ चौक तक आगाही वॉक का इनकाद किया गया। पूरी दुनिया में आज रजाकारों का आलमी दिन 5 दिसंबर मनाया जा रहा है। इसी तरह रहीम यार खान में भी रेस्क्यू 112 स्टेशन के ऊपर रजाकारों का आलमी दिन मनाया गया। इसमें हमने लोगों में अवेयरनेस और आगाही पैदा करने के लिए एक वॉक की, उसके अलावा हमारे सेमिनार्स, और इसमें मैं मज़ीद ऐड कर दूं कि हम हर एक शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, इसमें कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और घरों में तमाम एवरी वॉक ऑफ लाइफ में से हम उनको ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं और उनको अपने साथ इनरोल करते हैं। हम यहाँ पे रेस्क्यू रज़ाकार
رضاکار کے طور پر کام کر رہے ہیں. باقی اسٹوڈنٹ اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ رضاکارانہ ٹریننگ لیں اور دوسروں کی جان بچائیں. واق میں ریسکیو اہلکاروں، رضاکاروں اور شہریوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور انسانیت سے سرشار ریسکیو رضاکاروں کی خدمت کو سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان. قصور میں بھی والنٹیئرز کے عالمی دن کے حوالے سے ریسکیو آفس میں آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو کے رضاکاروں اور دیگر اداروں کے افراد نے شرکت کی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں قصور سے میاں کاشف کی رپورٹ. والنٹیئرز کے عالمی دن کے موقع پر قصور ریسکیو آفس میں سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. آگاہی واک میں ریسکیو اہلکاروں اور رضاکاروں اور دیگر اداروں کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آگاہی واک میں شرکا کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بینگ اے فیمیل میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنا کردار بہتر طریقے سے جہاں پہ بھی انجام دینا ہو کرے، اور جہاں پہ بھی والنٹیرزم کی طرف سے ہمیں جو بھی خدمات دینی پڑے وہ ہم اس میں پیش ہوں. جی آج والنٹیئر ڈے ہے اور اس حوالے سے یہاں پہ ہم نے ایک تقریب کی ہے. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں سیفٹی کو پروموٹ کرنا ہے اور والنٹیئر ڈے کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنا ہے کہ میکسیمم لوگ آئیں اور آ کر ریسکیو جوائن کریں اور ٹریننگ حاصل کریں اور اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر سر انجام دیں. میں ایک رضاکار ہوں اور میں ہمارے ملک پاکستان کے جو نوجوان ہیں انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک رضاکار بنیں ہماری طرح اور ہمارے ملک کے جو شہری ہیں ان کی خدمت کریں. واک کے دوران شرکا نے مختلف بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر رضاکاریت کے فروغ اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے نعرے درج تھے. اس دن کا مقصد رضاکاروں کی خدمات کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات جاری رکھ سکیں. والنٹیئرز ڈے کے موقع پر واک اور سیمینار کے موقع پر لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ملک و پاکستان کی لوگوں کو جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں کاشف، ABN نیوز، قصور. ٹوبا ٹیک سنگھ میں معروف ادبی تنظیم بزم وفائے قلم کا عالمی سطح کے معروف شاعرہ دختر ٹوبا ٹیک سنگھ ریحانہ قمر کی وطن آمد پر ان کے اعزاز میں فقید المثال استقبالیہ تقریب کا انعقاد. مزید احوال جانتے ہیں محمد آصف ندیم کی رپورٹ میں. اور مشاہدات کو اشعار میں ڈالنے کے فن کی حامل ٹوبا ٹیک سنگھ کی دھرتی و تاریخ کی پہلی عالمی شہرت کی حامل خاتون شاعرہ جسے دنیا بھر میں دختر ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام سے جانا و پکارا جاتا ہے کی وطن آمد پر معروف ادبی تنظیم بزم وفائے قلم کے زیر اہتمام صدارتی ایوارڈ یافتہ غیر منقود شاعر و مصنف ڈاکٹر منظر فلوری کی زیر صدارت فقید المثال استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا، اڑ گئے سارے پرندے، پیڑ تنہا رہ گیا. اب یہاں آصف سان کوئی ڈراتا ہے مجھے، جا چکے ہیں سارے مہمان، گھر کھنڈر سا رہ گیا. استقبالیہ تقریب میں صدارتی ایوارڈ کے حامل شاعر و مصنف ڈاکٹر منظر فلوری کا کہنا تھا دختر ٹوبا ٹیک سنگھ ریحانہ قمر کی عالمی سطح پر شاعری کی مقبولیت ٹوبا ٹیک سنگھ کے ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے بڑی تقویت کی حامل ہے. وہ جس سے خوشبوئیں پھیلی ہیں 400 منظر، سنا ہے شہر میں آیا ہوا ہے وہ ایک شخص. ایک عرصہ سے امریکہ میں قیام پذیر ریحانہ قمر مشرقی روایات کی سفیر اور امریکہ میں ترقی اردو ادب ادارے اور ریاست کیلیفورنیا کے پاکستانی سماجی حلقوں کی روح رواں ہیں. 10 سے زائد کتب کی خالق اپنی خداداد صلاحیتوں و اعلیٰ پائے کی شاعری کی بدولت لاتعداد قومی و عالمی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف ندیم، ABN نیوز، ٹوبا ٹیک سنگھ. لالا موسیٰ فن موسیقی کے ذریعے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کو اپنی مداحوں سے بچھڑے 42 سال بیت گئے. ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم 19 جنوری 1913 کو کلکتہ برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئی. ان کا اصل نام وحید النساء بیگم تھا. انہوں نے موسیقی کی تعلیم اپنے قریبی عزیز استاد عبدالکریم خان سے حاصل کی. تقسیم ہند سے پہلے بھی وہ خاص طور پر آل انڈیا ریڈیو کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے لاہور کا سفر کیا کرتی تھی، جہاں وہ موسیقی کے دیگر محافل میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے خوب داد سمیٹتی تھی. ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم نے فلموں کے لیے بھی کچھ گیت گائے، جن میں سے زیادہ تر کی دھنیں انیل بسواس، فیروز نظامی، نوشاد اور تصدق حسین جیسے اپنے دور کے نام پر موسیقاروں نے ترتیب دی تھی. فیصل آباد میں سردی میں اضافے کے باعث ڈرائی فروٹ کی فروخت میں اضافہ ہو گیا. دیکھیں گے فیصل آباد سے شیخ عرفان کی رپورٹ.
ड्राई फ्रूट बहुत सेहत बख्श गजा तस्वर की जाती है क्योंकि ये गजाइयत से भरपूर होती है। ड्राई फ्रूट में अखरोट अपनी खसूसियात की वजह से एक खास मुकाम रखता है। अगर इंसान रोजाना 5 अखरोट अपनी खुराक का हिस्सा बना ले तो इसके बेशुमार फवायद हासिल किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे अहम ये है कि इससे कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है, दिल के अमराज से बचाता है, शुगर का खतरा टाल देता है, जिल्द और नाखून के लिए बेहद मुफीद है और कैंसर से बचाता है। अखरोट नट्स में से बेहतरीन नट्स माना जाता है इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो होती है तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है। रोजाना 5 अखरोट खाने से इंसान के जिस्म को गजाइयत और विटामिन मिलने शुरू हो जाते हैं और इन विटामिन के जरिए इंसान अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगता है। अखरोट की जी बहुत सारी अफादियत है, ये कुव्वत बख्शता है, तवानाई देता है और गर्मी में जो है, सर्दी में जो गर्मी का एहसास दिलाता है और इसके साथ दिमाग की जो है वो नशोनुमा होती है। अखरोट के जरिए ज़हनी दबाव पर भी काबू पाया जा सकता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे कि दिल के अमराज। अखरोट न सिर्फ एक बेहतरीन ग़िज़ा है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। नेज़ाबाजी को एक नवाबी खेल होने के साथ साथ बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश भी समझा जाता है। टेक्सला में मुनक़िदा घुड़ नेज़ाबाजी मुकाबलों में 85 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की है। मुकाबलों से शायकीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात सैयद उमैर अली की रिपोर्ट में देखिए। घुड़ नेज़ाबाजी पाकिस्तान का एक तारीखी और रवायती खेल है। घुड़ नेज़ाबाजी को जवामर्दी, बहादुरी और जंगजुओं का खेल कहा जाता है। टेक्सला में मुनक़िदा घुड़ नेज़ाबाजी मुकाबलों में मुल्क के तोलवार से आने वाली 85 से ज़ायद मशाक घुड़सवारों पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। घोड़ों की पुश्त पर सवार माहिर नेज़ाबाज घोड़ों को संभालने के साथ साथ अपना तवाज़न बरकरार रखकर मट्टी में दबाए हुए लकड़ी के खूंटों को खड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं। नेज़े की लंबाई 7 फुट से लेकर 9 फुट तक होती है। इवेंट में सिंगल और सेक्शन मुकाबले हुए, जबकि जीतने वाली टीम को इंतजामिया की जानिब से 70,000 कैश प्राइज के साथ उन्हें स्वीनियर भी दिया गया। शायकीन घुड़ नेज़ाबाजी मुकाबलों से खूब महसूस हुए। मैंने 10 से 15 नेज़ाबाजियाँ अटेंड की हैं जिनमें बहुत ही अच्छे इंतजामात के साथ ये नेज़ाबाजी का एहतमाम किया गया है। काफ़ी अच्छे इंतजामात हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और हम लोग इधर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और इस गेम में ज़्यादातर नौजवानों को ऐसा लेना चाहिए। घुड़सवार नेज़ाबाजी मुकाबले न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस में माविन व मददगार साबित होते हैं बल्कि इस खेल को शहंशाहों और बादशाहों का रिवायती खेल भी कहा जाता है। सैयद उमैर अली, ABN न्यूज़, वाकैंड, टेक्सला। सफारी पार्क में 7 नन्हे शेरों की आमद। डिप्टी डायरेक्टर सफारी ज़ोतैनियर अहमद जंजुआ ने ABN को बताया कि तमाम बच्चे सेहतमंद हैं और नन्हे शेरों की खूब खिदमत की जा रही है। हमारे नुमाइंदा अली नासिर इस वक्त सफारी पार्क में डिप्टी डायरेक्टर सफारी ज़ू तनवीर अहमद जंजुआ के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद अली नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सफारी ज़ू मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 शेरनियों ने 7 बच्चे दिए हैं। हमारे साथ सफारी ज़ू के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करेंगे कि अब शेरनी कितने शेरों की तादाद हो चुकी है और बच्चों की क्या पोजीशन है और बच्चों को किस तरह खुराक दी जा रही है, किस तरह उनकी केयर की जा रही है, इसके ऊपर इनसे बात करेंगे। अब 3 जो हमारी शेरनियाँ हैं उसमें बर्थ हुई है, जिसमें 3 जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ हैं, उनकी माँ खुद उनको पाल रही है, जबकि ये जो 4 बच्चे हैं वो उनकी माँ ने उनको अटेंड नहीं किया। तो उसके बाद ये इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक कि हम इनको खुद जो है इसकी निगहदाश्त करें। तो उसके लिए जो 4 बच्चे हैं उसको हम खुद उनकी निगहदाश्त कर रहे हैं, उनको खुद फीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह वो हेल्दी हैं और हमारे पास जो हमारी जो वेट टीम है वो इसको देख रही है। ये थे सफारी ज़ू के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी बड़ी तफसील के साथ। उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सफारी ज़ू के अंदर 3 शेरनियाँ हैं, उन्होंने 7 बच्चे दिए हैं और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनकी निगहदश्त कर रहे हैं। और कुछ बच्चे वो माँ के साथ हैं, माँ ही उनको दूध पिला रही है, जबकि कुछ बच्चों को माँ ने दूध पिलाने से इनकार कर दिया है और जो सफारी ज़ू की इंतज़ामिया है वो मुकम्मल उनकी जो है वो निगहदश्त कर रही है, दूध पिला रही है। और 3 माह के बाद ये बच्चे दोबारा पिंजरे के अंदर छोड़ दिए जाएंगे ताकि लोग आकर इनको देखकर एंजॉय कर सकें। जी
सवाबी के अवाम अब चंदा मुहिम के जरिए अपने मसाइल का हल करने लगे। तहसील टोपी में रजाकार नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत टोपी बाईपास सड़क की मुरम्मत शुरू कर दी। मजीद तफसीलात सवाबी से सैयद आरिफ शाह की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत से तंग आकर सवाबी के तहसील टोपी में रजाकार नौजवानों ने हिम्मत और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए अरसे दराज से टूट फूट का शिकार टोपी बाईपास सड़क के लिए 15 दिन चंदा मुहिम किया, जिस पर अब बाकायदा मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। टोपी बाईपास के रजाकाराना तौर पर ये मुरम्मत कर रहे, हमने तकरीबन 10-12 दिन चंदा मुहिम चलाए रजाकाराना तौर पर, और इसमें जितने पैसे इकट्ठे हुए इस पर हमने टोपी बाईपास में जितने गड्ढे उसको इंशाल्लाह मुरम्मत करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि ये हल्का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का है, लेकिन इस बड़े ओहदे पर पाइज रहने के बावजूद भी आज उनके हल्के में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन लोगों ने अब उम्मीदें ख़त्म कर दी। शहरी कहते हैं हमारा जिला जो है गड्ढों का बना हुआ है, गदून में भी चांदा हो रहा है, टोपी में भी चांदा हो रहा है, छोटे लाहौर में भी चांदा हो रहा है, तो आजकल हमारा स्वाबी जो है ना चांदों पे चल रहा है। तो अल्लाह खैर करे, और हम लोग जो है ना पीटीआई से जो है ना सब लोग जो है ना बेजार आ गए, वादे करके जो है ना अभी तक वादा एक भी निभाया नहीं है। अपने इलाकाई मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से उम्मीदें लगाना महज अब सिर्फ ख्वाब ही रह गया है, क्योंकि इन मसाइल का हल अब आवाम खुद तलाश करेगी। कैमरा टीम के साथ सैयद आरिफ शाह, ABN न्यूज़, सवाबी। अलाई का रखता बयारी सड़क की खस्ता हाली का शिकार सड़क आवाम के लिए अजाब बन चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढों और टूट फूट ने अवामी नकलो हरकत को मुश्किल बना दिया। तहसील अलाई के तमाम राबिता सड़कें भी खस्ता हाल है, जिन पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। गढ़ी हबीबुल्लाह की सबसे कदीमी दरसगाह गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल में 1300 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि सहूलियात का फुकदान है। तनावल में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। आटे, चीनी, दालें और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। उगी में माइंस ठेकेदारों के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। देखेंगे आसिफ खान की रिपोर्ट। उगी के इलाका मखियाला में माइंस ठेकेदारों की मनमानियों और लोगों को धमकाने के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए, और उन्होंने मुंतखब क़यादत से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। स्कूल मुतासर रोड है, वो हमारी आवाम ने और मैंने कोई हुकूमत का एक पैसे नहीं लगा हुआ है। हमने अपनी मदद अपने तहत कनगाली से तनोया, गली बदराल, मनसरा ये रोड टच करता है। वो अभी ये कह रहे हैं कि वहाँ माइन लगाना चाहता है, उसके सर पे आबादी है। ये ऐसी साहब मौके पे आएंगे तो उनको खुद मालूमात हो जाएगी कि लोग अगर सच पे हैं तो खुदा रहा इनके हाल पे रहम किया जाए। अहले इलाका ने खबरदार किया, अगर उनके साथ इंसाफ न हुआ तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कोहाट में वेमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के असर नौ तामीर पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत जारी। उन्होंने इमरजेंसी और तमाम मुतालिका वार्ड्स देखे, मरीजों और लवाकिन से इलाज मुआलजे के दस्तियाब वसाल के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई मुशीर सेहत ने अस्पताल के असर नौ तामीर पर काम जल्द शुरू करने का इंदिया भी दे दिया। अस्पताल की सफाई तजीन और मौजूदा सहूलियात के बेहतरीन इस्तेमाल पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। खानपुर पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बीच ने खानपुर बोटिंग एसोसिएशन के सदर आजा हनीफ एहसन कयानी और दीगर की दरख्वास्त पर खानपुर डैम को बोटिंग, पैरासेलिंग और सेहत के लिए खोलने के ऑर्डर जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बीच ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए खानपुर डैम पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इस चीज की इजाजत दे दी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में खेले जाने वाले फुटबॉल के डिस्ट्रिक्ट और सूबाई टूर्नामेंट से खिताब पसीर हो गए। गवर्नर फुटबॉल कप के सूबाई टूर्नामेंट के फाइनल मैच में यंग 11 बन्नू ने खान क्लब मीरानशाह को 0-1 शिकस्त देकर विनर ट्रॉफी इब्तिनाम कर ली। मैच के चीफ गेस्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सदर मोहम्मद इसरार खान समेत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आदिल शाह, जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुल हक और TMO बन्नू यूसुफ खान, असातिज़ा तंजीम बन्नू के रहनुमा रियाज खान ने डिस्ट्रिक्ट और सूबाई टूर्नामेंट के विनर और रनर अप टीमों को ट्रॉफी और कैश प्राइजेस दिए। सिंध का रुख करते हुए आपको बताएं, लाड़काना में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से चौकीदार कत्ल, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक नजर मोहल्ला में हेयर सैलून पर फायरिंग हुई है। गोलियां लगने से चौकीदार जाम बहक हो गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बलूचिस्तान के रुख करें। औस्ता मोहब्बत में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक बलूचिस्तान सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली दरपेश मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर समेत जिला भर के अफसरान का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने दरपेश मसाइल पर तमाम अफसरान को ब्रीफिंग दी और इन्हें हल करने की हिदायत जारी की। उनका मजीद कहना था कि तमाम मनसूबों को टाइम पर मुकम्मल करने की कोशिश करें और तमाम तरक्याती मनसूबे इन ग्राउंड पब्लिक को नजर आएंगे। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर से बताएं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा फैसला आ गया। आज़ाद कश्मीर में कल भी बदस्तूर पहिया जाम और शटर डाउन रहेगा। हुकूमत को कल 12 बजे की डेडलाइन दे दी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर का कहना था कि कल शाम को मीटिंग के बाद अगले लाहेअमल का ऐलान होगा। आज की इस कामयाब हड़ताल के बाद हम हुकूमत को ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक हमने ऐलान किया हुआ है। हम हुकूमत को कल 12 बजे तक का टाइम देते हैं। कल जो कॉल दी जाएगी वो लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, वो जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनकी तरफ, उनकी बंदिश की तरफ भी लॉन्ग मार्च हो सकती है। इसके अलावा इससे बड़ी भी लॉन्ग मार्च हो सकती है। ये आप पे अब मुनहसर है कि हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करके आपको बता दिया कि ये पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम इस काले कानून के खिलाफ है। आपको ये काला कानून वापस लेना